students, welcome to Adishri publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 12 and the name of your chapter number 12 is Every Drop Counts. Okay, in this chapter, my dear student, what concept overview we are going to discuss? Let's see, Bowlies. Okay, changes in sources of water, PIAUs. Means of irrigation, devices used for irrigation, floating and sinking, soluble and insoluble, then miscible and immiscible measuring liquids. Okay, and what are the curricular goals which we are going to discuss in this chapter? They are understand the importance of water conservation. Okay, then learn about the water cycle and sources of water, then develop habits and skills to save and use water responsibly. So come with me, my dear friends, and let's start the chapter. Okay, water is an essential part of our life. Without water, there would be no humans, no plants, and no animals. No living things, even tiny insects or tall trees, nothing can survive. Water is the most important and essential part of any living beings. Okay, maybe they are plant or animals, okay, or human beings. Even the tiny insects, okay, they all need water for their own survival. Okay, then rain is the main source of water. Okay, so what is the main source of water? Our rainfall. Okay, the other sources of water are lakes, ponds, rivers, seas and oceans. During earlier times, there were no taps or pumps. People had to walk long distance to bring water in pots, buckets, etc. Okay, so if rainfall is the main source of fresh water, my dear student, then apart from rainfall, we can also get our water from lakes, ponds, rivers, seas and ocean. And if I talk about ancient times, okay, in ancient times, or you can say in our older times, there were no facility of taps are available. Okay, so for gathering two buckets of water, people has to cover a large area. Okay, ना बाउलीज का क्या मतलब है? चलिए देख लेते हैं बाउलीज क्या होती है. देखिए, ए बाउली इज अ ह्यूज वॉल. It has a steps to reach the bottom. In earlier time, baulis were built to collect and store rainwater. A bauli is also called as a step well. These are used as a meeting place by people. Baulis are common in Rajasthan and Gujarat. बाउलीज का मतलब क्या होता है बच्चों? बाउली का मतलब होता है बड़ा सा कुआं. ठीक है, बट इस कुएं के अंदर सीढ़ियां बनी होती हैं. ठीक है, और इसमें जब सीढ़ियां बनी होती है तो ये बावली का मतलब है क्या, क्यों बनाए गए थे? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सीढ़ियां बनी हुई है, यहाँ पे लोग बैठते थे. ठीक है, साथ ही साथ इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे रेनफॉल होती थी ना, तो रेनफॉल का पानी इकट्ठा होता था. ठीक है, तो बावली का कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो राजस्थान में और गुजरात में बहुत फेमस है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में पानी का शॉर्टेज रहता है. ठीक है, क्योंकि राजस्थान में हमारा थार डेजर्ट है और गुजरात के भी कुछ पोर्शंस में हमारा रन ऑफ कच्छ का डेजर्ट है. ठीक है, तो इसीलिए राजस्थान और गुजरात में बाउलीज बनाए गए थे. ठीक है, चलिए, नाउ चेंजेस इन सोर्सेज ऑफ वाटर. ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बदला है बच्चों, वैसे वैसे हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर भी बदले हैं. जैसे in ancient time, women used to walk many kilometers every day to fetch drinking water from a well. To take a bath and wash clothes, they used water from a nearby pond. Then hand pump came into use. Later on, electric pumps were installed which pulled the groundwater and filled up the overhead tank. From the overhead tank, water came to the taps in the kitchen. देखिए किस तरीके से हमारे सोर्स ऑफ वाटर में चेंजेस आए हैं. पहले के जमाने में औरतें बहुत दूर तक जाती थी पानी लेकर आने के लिए. अगर उन्हें कपड़े धोने और नहाने हैं तो वो नदी के किनारे नहा भी लेते थे और कपड़े भी धो लेते थे. ठीक है, उसके बाद बच्चों बारी आती है फिर हैंडपंप की. ठीक है, हैंडपंप का यूज होने लगे तो लोगों को पानी मिलने में आसानी होने लगी. फिर बारी आई इलेक्ट्रिक पंप की. इलेक्ट्रिक पंप अंडरग्राउंड से पानी खींचता है और वो हमारे टैप्स के थ्रू हमारे घरों में पानी आता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपका ट्यूबवेल है और ये आपका क्या, सॉरी, ये हैंडपंप है और ये आपका इलेक्ट्रिक पंप्स हैं. ठीक है, चलिए ना, एक ट्रुथ बैंक है, यहाँ पे देख लेते क्या है. बूंदी इन राजस्थान इज कॉल्ड द सिटी ऑफ स्टेपल्स बिकॉज इट हैज 381 बाउलीज. बूंदी डिस्ट्रिक्ट हमारे राजस्थान में है. यहाँ पे इस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि बूंदी में आपका 381 बाउलीज हैं. ठीक है, चलो अब पियाओ. पियाओ का क्या कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं. पियाओ का क्या कॉन्सेप्ट है देखिए. बहुत सारे लोग बच्चों क्या करते हैं,
बहुत सारे लोग बच्चों क्या करते हैं, लोगों को फ्री में पानी पिलाते हैं, ठीक है। तो फ्री में पानी पिलाने के लिए वो लोग पियाओ का इंस्टॉलमेंट करते हैं रोड के किनारे, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारे लोग फ्री वाटर कैंप का भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ताकि वो वहां पे फ्री ड्रिंकिंग वाटर लोगों को देते हैं। ये आप देखोगे ये बहुत ही कॉमन साइट है, गर्मियों के टाइम में आपको मिलता है, ठंडियों में भी मिलता है, लेकिन गर्मियों में ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे लोग अर्दन पॉट्स में क्या करते हैं, पानी भरते हैं और रोड साइड पे रख देते हैं, ठीक है, ताकि जिसे भी प्यास लगती है वो आके पी ले, ठीक है। तो ये है आपका पियाओ का कॉन्सेप्ट, देखिए इस फॉर्म में होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का क्या क्या तरीका है, देखिए इंडिया में बच्चों हमारा जो फील्ड है, ठीक है, वो बेसिकली हमारे रेन वाटर से ही इरिगेट किया जाता है मानसून सीजन में, ठीक है। लेकिन मानसून में क्या है, कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो कहीं पे कम बारिश होती है, ठीक है। तो बच्चों जहां पे कम बारिश होती है ना, वहां पे हमें आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन की जरूरत पड़ती है अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए, ठीक है। तो इसी आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन को हम कहते हैं इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए इरिगेशन के बहुत सारे सोर्सेज है हमारी कंट्री इंडिया में, जैसे बहुत सारे फार्मर्स ट्यूबवेल का यूज करते हैं, टैंक्स का यूज करते हैं, कैनाल्स का भी यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप है तो उनको अलग अलग तरीके से पानी चाहिए, कुछ पौधों को बहुत ज्यादा पानी चाहिए तो कुछ को कम चाहिए तो कुछ को बहुत कम चाहिए पानी, ठीक है। तो देखिए अब एग्जांपल आप देखिए, जैसे चावल है, राइस की खेती जब करते हैं ना फार्मर्स, उन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। वीट को पानी की जरूरत पड़ती है लेकिन राइस से कम पड़ती है, और वीट को अलग अलग स्टेज में पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्रॉप्स लाइक शुगर केन, रबर और टी है, इन्हें कम पानी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये है, ये क्या है, ये हमारे इरिगेशन के सोर्सेज हैं, हमारा ट्यूबवेल है, वेल है, टैंक है और केनाल है, ठीक है। इसके अलावा ये राइस का क्रॉप है और ये वीट का क्रॉप है, ठीक है। चलिए अब वेल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। कुआं, कुआं क्या होता है, देखिए जो कुआं होता है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा डीप होल होता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर के लिए बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा जाता है, उसी को कहा जाता है आपका वेल, ठीक है। उसके बाद जब गड्ढा खोदा जाता है तो पानी निकलता है, उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, एक पुले के हेल्प से बाहर निकालते हैं, ठीक है। और एक रोप उसमें बांधा जाता है, ठीक है। एक रोप बांध के एक बाल्टी को या बकेट को उसके अंदर डाला जाता है, उसको खींचा जाता है पुले से, ठीक है। तो जब आप खींचते हो तो आपका क्या होता है, वेल से पानी आपके पास बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ट्यूबवेल, अब ये ट्यूबवेल क्या होता है देख लीजिए। ट्यूबवेल बच्चों वो ट्यूबवेल का मतलब होता है, ट्यूबवेल भी वेल है लेकिन उसमें आप हाथ से पानी निकालते हो बाहर, ट्यूबवेल में आप लोग इलेक्ट्रिक पंप्स का यूज करके अंडरग्राउंड से पानी निकालते हो, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी पानी किसी किसी जगह पे बहुत गहराई के अंदर होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ट्यूबवेल का यूज करते हैं, तो ट्यूबवेल सबसे बेस्ट तरीका होता है पानी वहां से निकालने का, ठीक है। यहाँ पे बोरहोल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, अब पाइप डाली जाती है, उसके बाद बच्चों यहाँ से फार्मर्स पानी लेके अपने खेतों की सिंचाई के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। फिर टैंक, टैंक क्या होता है देख लीजिए। टैंक का मतलब होता है हमारे बहुत सारे जगहों पे, खासतौर पर हमारे सदर्न प्लेटूज में, मतलब जो हमारा सदर्न इंडिया है बच्चों, यहाँ पे जो जमीन होती है ना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है कुआं खोदने में, ठीक है। जमीन हार्ड है तो आप जल्दी यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेल्स को डिग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बरसात के सीजन में पानी बहुत कम इकट्ठा हो पाता है, वेल्स है ही नहीं तो पानी कहाँ जाएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे सदर्न एरियाज में, ठीक है, सदर्न एरियाज में एक टैंकर बनाया, मतलब एक एरिया बनाया जाता है, वहां पे रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है, उसी को टैंक कहा जाता है, ठीक है। और टैंक के इसी पानी को यूज करते हैं फार्मर्स इरिगेशन के लिए, ठीक है। फिर कैनाल्स, अब कैनाल्स क्या होते हैं देख लीजिए आप लोग। जो कैनाल्स है ये कि स्मॉल चैनल होता है, ठीक है, और इसी चैनल के थ्रू रिवर का पानी या लेक का पानी खेतों तक लाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग ये देखेंगे डिवाइसेस यूज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए कौन कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए इरिगेशन करने के लिए हम लोग ट्यूबवेल का, वेल का, कैनाल का और लेक्स का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे सम डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो अब आगे हम लोग ये देखेंगे इरिगेशन करने के लिए कौन कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यूज किया जाता है स्प्रिंकल्स का, ठीक है। स्प्रिंकल्स का क्या मतलब होता है, स्प्रिंकल्स का मतलब होता है बच्चों एक पाइप होता है जिसमें कई सारे छेद किए होते हैं, ठीक है, इसमें से पानी क्या होता है बाहर निकलता है, ठीक है, ठीक है। इसमें से ये देखिए स्प्रिंकल है तो इसमें से पानी बाहर निकलता है, वो आसपास के एरिया को क्या करता है, उस इरिगेट करता है, ठीक है।
चलिए, इसमें भी पानी कहाँ से आता है, आपके पास पंप के थ्रू आता है, ठीक है। चलिए, अब जब आप देखिए स्प्रिंकल्स का यूज करके जब आप क्रॉप्स को इरिगेट करोगे ना, तो जानते हो क्या, एक टाइम पे बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हो। स्प्रिंकल्स आप लोग पार्क वगैरह में देखते होंगे, ठीक है। फिर बारी आती है वाटर व्हील की। वाटर व्हील का हेल्प करके भी हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, हमारे एरियाज को इरिगेट करते हैं, ठीक है। तो वाटर व्हील में बच्चों बहुत बड़े बड़े व्हील लगे होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, देखिए इस शेप में, ठीक है। इसमें कई सारे ब्लेड लगे होते हैं, इन ब्लेड के अंदर बकेट्स होते हैं, ठीक है। ये बकेट्स क्या करते हैं, पानी में डिप होता है, पानी बाहर निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक तरफ से पानी भरते हैं और एक तरफ से पानी गिराते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे क्या होता है, इरिगेशन भी होता है, मतलब एक तरफ से पानी निकाल रहे हैं बकेट में, ठीक है, और वो व्हील रोटेट कर रहा है, तो जब एक तरफ से निकाला दूसरे तरफ से उन्होंने क्रॉप्स में दे दिया, ठीक है। तो ये है आपका वाटर व्हील, ठीक है। इसके अलावा विंड मिल, ठीक है। तो विंड मिल क्या है, देखिए बहुत सारी जगहों पर बच्चों क्या होता है, विंड एनर्जी का यूज किया जाता है पानी को कुएं से बाहर निकालने के लिए। ये रहा आपका विंड मिल, ठीक है। फिर दूसरा फिर तरीका और कौन सा है हमारे इरिगेशन का, वो है हमारा वाटर पंप, ठीक है। वाटर पंप का भी इस्तेमाल किया जाता है अंडरग्राउंड से पानी निकाल के और उस पानी को फील्ड में इरिगेशन के लिए, ठीक है। ये देखिए वाटर पंप्स का, ठीक है। चलिए फ्लोटिंग और सिंकिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये क्या है। फ्लोटिंग और सिंकिंग क्या होता है, आप देखते हो बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं और बहुत सारी चीजें पानी में डूब जाती हैं। तो फ्लोट का मतलब होता है तैरना, सिंक का मतलब होता है डूबना, ठीक है। देखिए कौन सा चीज फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, कौन सी चीज डूब जाएगी, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि उस चीज में, उस ऑब्जेक्ट में कितना आपका मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। कितना बड़ा वो चीज है और उसमें कितना ज्यादा उसमें मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस पर वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखोगे जो इजीली आपका पानी में डूब जाता है, जैसे आपका आयरन नेल है, कॉइन है, स्टोन है, ये सब क्या होते हैं, ये सब पानी से ज्यादा डेंस होते हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है ये पानी से ज्यादा होती है, इसीलिए पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। वहीं पे कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कॉर्क है, थर्माकोल है, प्लास्टिक टॉयज है, ये पानी के ऊपर ना फ्लोट करते थे, पानी के अंदर कभी डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूबते, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। तो याद रखिएगा, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी वो डूब जाएगा। जैसे आपका आयरन नेल, कॉइन्स और स्टोन्स हैं, ठीक है, वो डूब जाएगा, ठीक है। और जिनकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, एन एग विल फ्लोट इफ वी ऐड शुगर टू वाटर। देखिए एग अगर आप डालोगे तो पानी में डूब जाएगा, लेकिन एग फ्लोट करेगा पानी में अगर आपने उस पानी में शुगर डाल दिया है तो, ठीक है। तो यानी नॉर्मल पानी जिसमें कुछ नहीं मिला है उसमें अगर आप एग डालोगे तो एग आपका डूब जाएगा, लेकिन जिस पानी में आपने शुगर ऐड किया है उस पानी में अगर आप एग डालोगे तो एग फ्लोट करेगा फिर, ठीक है। चलिए फिर देखिए बच्चों क्या है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप पानी में डालते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, देखिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप पानी में डालते हो तो वो ऑब्जेक्ट पानी को हटाने की कोशिश करता है। पानी को हटाएगा तभी तो उसको जगह मिलेगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे ना तो पानी को पहले हटाएगा और अपने लिए जगह बनाएगा ताकि वो वहां पे रह सके, ठीक है। इसीलिए बच्चों देखिए वाटर क्या करता है, वाटर भी एक फोर्स जनरेट करता है और वो फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जो वाटर जिस फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जनरेट करता है उसको हम ब्योंसे कहते हैं, ठीक है। ब्योंसी का फोर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर के बराबर है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर पानी को हटाता है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। तभी ना वो फ्लोट करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी से ज्यादा मतलब पानी से कम डेंस है या पानी के बराबर है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी से ज्यादा क्या है, डेंस है, तो वो डूब जाएगा। समझ में आया। चलिए नाउ सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल, इसका क्या मतलब होता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूबल का मतलब होता है बच्चों, हम उसी सब्सटेंस को सॉल्यूबल कहेंगे पानी में जो आसानी से पानी में घुल जाता है। सॉल्यूबल का मतलब घुलना होता है, ठीक है। हम उसी सब्सटेंस को कहेंगे कि ये इजीली पानी में घुल गया, जो सच में ये आसानी से बहुत घुल जाए। जैसे अगर आप शुगर को पानी में डालोगे, ठीक है, तो पानी में वो मिक्स हो जाएगा और वो पानी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जब वो पानी का पार्ट बन जाएगा तो वो नॉर्मल पानी आपका स्वीट पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वीट वाटर में, ठीक है। तो जब आप उसको पियोगे तो आपको मीठा लगेगा वो पानी पीने में। उसी तरीके से बच्चों जब आप शुगर और वाटर, ठीक है, तो यही जो शुगर और वाटर का मिक्सचर है उसे हम सोल्यूशन कहते हैं।
समझ में आया? सॉल्यूबल और सॉल्यूशन क्या है? देखिए, कोई भी चीज हम तभी कहेंगे कि ये सॉल्यूबल है हमारे पानी में जब वो घुल जाता है, ठीक है। और जो चीज घुल गई, वो घुली हुई चीज और पानी, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सोल्यूशन है, ठीक है। और इस सोल्यूशन में बच्चों जो शुगर है वो सॉल्यूट है, ठीक है। और जो वाटर है आपका, वो आपका सॉल्वेंट है। शुगर क्यों सॉल्यूट है? तो शुगर मिक्स हुआ है, शुगर मिक्स हुआ है। और वाटर आपका सॉल्वेंट इसलिए क्योंकि वो उसमें मिक्स क्या है, वाटर ही तो वो ऑब्जेक्ट है ना जिसमें मिक्स हो रहा है कोई भी चीज, ठीक है, इसीलिए इसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब तो सॉल्यूबल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि पानी में घुल गया। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं। तो जो चीज पानी में नहीं घुलती है बच्चों, उसको हम लोग इनसॉल्यूबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप दोगे, आप सैंड को पानी में घोलिए, ठीक है, तो वो कभी भी आप देखोगे, कभी भी वो पानी के साथ घुलता नहीं है, ठीक है, वो कभी भी नहीं घुलेगा। उसी तरीके से बच्चों, अगर आप, ठीक है, वो पानी में कभी भी घुलेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो पानी के नीचे जाके बैठ जाएगा। इसीलिए पानी को हमेशा एक पतले से कपड़े से छान के पीना चाहिए। तो जब आप उसको छानोगे ना, तो आप देखोगे पानी में बहुत सारी ऐसी चीजें सैंड की तरह जो पानी में नहीं घुलती हैं, ठीक है। तो सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते क्या है। ये देखिए, आपने सॉल्ट और वाटर को जब मिक्स किया तो ये सॉल्ट का सोल्यूशन बना, ठीक है। अब आपका मिसिबल और इमिसिबल क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, मिसिबल का मतलब होता है बच्चों, जो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं वो मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। अभी आपने शुगर या सॉल्ट जब पानी में घोला, तो शुगर और सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, आपने सॉलिड को वाटर में घोला है। लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होता है, लिक्विड ही लिक्विड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई दो लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं, उसको हम मिसिबल लिक्विड कहते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, सॉल्यूबल का मतलब आपने सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया और वो क्या हुआ, वो मिक्स हो गया, सॉल्व मतलब उसमें क्या था, डिसॉल्व हो गया, तो वो आपका सॉल्यूबल हो गया। और जो चीज पानी में नहीं घुलती है वो इनसॉल्यूबल है। अब ये मिसिबल और इमिसिबल क्या होता है? मिसिबल में लिक्विड ही लिक्विड में मिक्स हो रहा है। कोई भी लिक्विड जब पानी में मिक्स हो जाता है तब हम उसको मिसिबल कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नींबू पानी है, ठीक है, नींबू पानी क्या है, नींबू का रस है, वो भी तो लिक्विड फॉर्म है। तो जब आप उसको पानी में मिक्स करते हो तो क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। वहीं पे बच्चों, आप जब दूसरा लिक्विड पानी में मिलाते हो तो वो मिक्स नहीं होता है। जैसे आप पानी में कुछ ड्रॉप ऑयल का डालिए, तो क्या ऑयल पानी में मिक्स होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो पानी से अलग हो जाएगा और पानी के ऊपर वो तैरता रहेगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। समझ में आया? जो लिक्विड पानी में मिक्स नहीं होगा उसको हम कहेंगे इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। अब एक ट्रूथ बैंक के देख लीजिए, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज इट कैन डिसॉल्व मैनी सब्सटेंसेस। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्यों? क्योंकि पानी में बहुत कुछ घुल जाता है, ठीक है। चलिए, मेजरिंग लिक्विड्स, अब हम लोग ये देखेंगे बच्चों, पानी को किस तरीके से हम लोग लिक्विड को, ठीक है, लिक्विड को किस तरीके से हम लोग नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है। लेकिन शेप भले नहीं है, लेकिन लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हमेशा जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम कंटेनर के इनर वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। ये देखिए, लाइन लिखी है ना, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल टू द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। जो पानी का अपना खुद का वॉल्यूम होता है, वो उस कंटेनर जिसमें आप उसे डाल रहे हो उसके इनर वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। और हमेशा हम लोग लिक्विड को लीटर में नापते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम का सबसे छोटा यूनिट होता है मिलीलीटर, ठीक है। और मिलीलीटर को हम लोग ml के फॉर्म में शो करते हैं। तो चलिए, मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरिंग लिक्विड, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम क्या है जिससे हम लोग लिक्विड को मेजर करते हैं? तो ये रहा, देखिए, एक मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। एक मेजरिंग सिलेंडर वो सिलेंडर होता है जिसमें मार्किंग की होती है। ये देखिए, देख रहे हो, 250 230, ये मार्किंग ऐसे बना होता है जो ये बताता है लिक्विड के वॉल्यूम्स को, कि आपका जो लिक्विड है वो लीटर में है कि मिलीलीटर में है, ठीक है। तो देखिए, 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 लीटर। देखिए, ये 30 50 70 ये दिख रहा है ना आपको, हाँ, ये आपका लीटर है, और जो बाकी ये छोटे वाले वो मिलीलीटर है, ठीक है। तो 1000 मिलीलीटर का मतलब है 1 लीटर, और 1000 लीटर का मतलब है 1 किलोलीटर, ठीक है।
So my dear student, this is all about our chapter. Now come with me, let's see the quick revision of this chapter. क्या क्या चीजें पढ़ी हैं हम लोग इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा हमारे पानी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, हमारा रेनफॉल है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बाउली का मतलब क्या होता है, बाउली का मतलब होता है स्टेप नुमा, सीढ़ी नुमा कुआं। ठीक है, ये राजस्थान और गुजरात में बहुत फेमस है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने डिफरेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन भी देखा है, जैसे वेल, ट्यूबवेल, टैंक्स और कैनाल्स है। ठीक है, कुआं हम लोग वहां खोदते हैं जहां पे अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए, और जब हम लोगों को पानी मिल जाता है, ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा गहराई में होता है, तो वहां से पानी निकालने के लिए हम लोग ट्यूबवेल का यूज करते हैं, क्योंकि वही बेस्ट मेथड है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स है, तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में पानी भी चाहिए इरिगेशन के लिए। ठीक है, किसी को पानी ज्यादा चाहिए, किसी क्रॉप को, किसी को कम, तो किसी को बहुत कम चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा है, इरिगेशन के बहुत सारे मेथड देखे हैं कि इरिगेशन कितने तरीके से किया जाता है, स्प्रिंकल के फॉर्म में, वाटर व्हील का यूज करके, विंड मिल और वाटर पंप्स का यूज करके। ठीक है, और सब्सटेंस, सब्सटेंस हम सॉल्यूबल कब कहते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस पानी में जल्दी घुल जाता है या इजीली घुल जाता है, उसको हम सॉल्यूबल कहते हैं, और जो सब्सटेंस पानी में नहीं घुलता हम उसको इनसॉल्यूबल कहते हैं। ठीक है, वहीं पे बच्चों देखिए, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो हमेशा लीटर और मिलीलीटर में नापा जाता है। ठीक है, और वाटर आता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट, जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete all your self evaluation activity. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.